جاوید لطیف نے ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب حملہ ہوا تھا وہ شہید ہو گئی، تو پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یعنی صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا؟ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن کسی کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا، وہ جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور شیخوپورہ کی عوام ان کو بار بار الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے، ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے. ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو بار بار انتقام کا نشانہ بنایا تو آپ خود اس کی زد میں آئیں گے. مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی. یہ بتا دیجیے گا کہ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، اس میں نون لیگ کیا موقف اختیار کرے گی؟ آپ نہیں سمجھتی اب استعفوں کا وقت آ چکا ہے، اور دوسرا آج چینی پھر 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، اس پہ کیا دیکھیں؟ بالکل چینی بلکہ 105 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. اور میں تو بولوں گی، میں مہنگائی کے پسے عوام کے لیے بھی بولوں گی، میں جو لا قانونیت ہے میں اس کے خلاف بھی بولوں گی، میں ان کی اقربا پروری کے خلاف بھی بولوں گی، میں ان کی اے ٹی ایمز کے خلاف بھی بولوں گی. لاہور کو اور پورے پاکستان کو جو انہوں نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جگہ جگہ پہاڑ بن گئے ہیں کوڑے کے ڈھیر کے، تو میں ان کی آٹا چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی چینی چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی گیس چوری کے خلاف بھی بولوں گی، ان کی بجلی چوری کے خلاف بھی بولوں گی. اور اگر اس کو آپ سیاسی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو ہاں میں سیاست کروں گی. نیب کو یہی تکلیف ہے نا کہ میں آٹا چور کو آٹا چور کیوں کہہ رہی ہوں، میں چینی چور کو چینی چور کیوں کہہ رہی ہوں، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے. یہ سیاسی سٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں، یہ تو بالکل میں پاکستانی شہری ہوں، آئین اور قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، عوام کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اب اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہاں، اور ایک اور بات، نہیں استعفوں والی بات ابھی میں کرتی ہوں، لیکن ایک اور بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کو جیل کی ضمانت کینسل ہونے کی دھمکیوں سے ڈرا لیں گے تو سوری، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ بار جب پولیس نے گھیرا ڈالا تو دیوار پھلان کے بھاگ گئے. مریم نواز الحمدللہ 2 دفعہ بے گناہ جیل کاٹ کے آئی ہے، تیسری دفعہ بھی کاٹ لے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ قربانی مجھے دینی پڑتی ہے تو میں ضرور دوں گی. یہ دھمکیاں، گیدڑ بھبکیاں جس کو کہتے ہیں، یہ کسی اور کو دینا. تم لوگوں کے دماغ میں خوف ہوگا، مریم نواز کے دماغ میں خوف نہیں ہے. اور ایک آخری بات، انتقام میں اب تم انتقام میں بھی ناکام ہو گئے ہو تو اب عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہو. اب آپ عدلیہ کو انتقام میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیب کے اس جھوٹ کا، اس لغو اپلیکیشن کا، اس بیہودہ اپلیکیشن کا نوٹس لے اور ان کے خلاف ایکشن لے. کیونکہ میرے لائرز یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی اپلیکیشن کے خلاف خود ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر نیب کو اداروں کا اتنا خیال ہے تو جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں، مختلف فیصلوں میں، اپنے مختلف ریمارکس میں، ہائی کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں، مختلف ریمارکس میں نیب کی جو کلئی کھولی ہے اور نیب کو جو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے، تو نیب کو چاہیے کہ ان اداروں کی ان سٹیٹمنٹس کو، ریمارکس کو، فیصلوں کو دیکھتے ہوئے نیب کو تالا لگائے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرے. مجھے دیکھیں، سینٹ سے بڑا جو 7 ووٹس ریجیکٹ ہوئے، اس سے بڑا سکینڈل کیمرہ ہے، کیمرہ لگانا ہے. کیونکہ آئین کے اندر جو ہے وہ خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمراز کا ذکر نہیں ہے. اور وہ کس طرح وہاں پر لگائے گئے چپ کر کے راتوں رات، اور کس نے لگائے، کس کی اجازت سے لگے، کس کی سپرویژن میں لگے، اور کس کو یہ یقین تھا کہ میرے لوگ بھاگ جائیں گے تو مجھے کیمراز لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے.
नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से तो आपने डरा धमका के कंटेनर्स में बंद करा के अपने ही अरकान को आपने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे एतमाद का वोट ले लिया। सेनेट में आप ये भी नहीं कर सकते थे तो आपने खुफिया कैमरास लगा दिए। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात है तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इतना ग्लेरिंग है, उनके नाम के ऊपर मोहरें लगी थी, 7 मोहरें जिनको इन्होंने 7 वोट्स जो इन्होंने कहा कि वो वैलिड नहीं है। अब अगर उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, चाहे वो उम्मीदवार के नाक पे लगे, माथे पे लगे, चेहरे पे लगे, है तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगी है ना। जब आपकी वोटिंग इंटेंशन जो है या वोटर्स इंटेंशन क्लियर है, उसी खाने में है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो जानबूझ के मैं ना मानू वाली बात हुई ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाअल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नैब का ये काम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। नैब का काम है वो डिटरमिन करे कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि कुछ दबाव है सुप्रीम हाई कोर्ट को? तो ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। कौन है इसके पीछे? और दूसरा ये बताइएगा कि आपको सुना है कि थ्रेट्स हैं, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट्स कर रही है, क्यों कर रही है? इनके पीछे मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके हैं जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे। तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसके हाथ में है। तो जो मरियम को स्मैश करने के ख्वाब देख रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो ये हाथ पांव मारे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के कंधे पर रखकर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकाम की और मरियम नवाज को कर्टेल करने की, मरियम नवाज को काबू करने की एक नई तरकीब सोची है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को ना सिर्फ ये कि एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो मुज़िका खेज़ दरखास्तें हैं उनका रास्ता बंद करेगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है तो आप ये जान लें कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। उनको जब आप इमरान खान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, दस्का से भाग जाता है, थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद, जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? आओ जरा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो आवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। मैडम ये बताएं कि कल अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती। तो वो तो आप जाहिर है हुक्म के गुलाम है। उनको ये हुक्म दिया गया है कि मेरे ओपोनेंट्स को तुमने लाइन में रखना है। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज के काबू आते हैं उनको एजेंसीज काबू करें, उनको फ़ोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। सुना तो ये था ना पहले कि अपोजिशन के अरकान उठाए जाते थे, उनको धमकाया जाता था। इस दफ़ा तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs खुद उठाए गए। ये बताइएगा कि मरियम साहबा के हुकूमत ने कल कहा है कि आप लोगों से बैठना चाह रहे हैं, वो आपके बड़ों के साथ बैठना चाह रहे हैं। मुल्क की मेरे बड़े कौन है? बड़े नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके साथ बैठना चाहेंगे कि मुल्क की सूरत-ए-हाल के ऊपर? दूसरा ये बताएं कि PDM पहले एक करके मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है, ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कंधे पे उनके रख के बंदूक चलाने की कोशिश की थी, ये शो ऑफ हैंड्स वाले, उसमें PMLN ने साफ इनकार किया, PDM ने साफ इनकार किया। मैं समझती हूँ ये जाली हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि आवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। इसकी कोई ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इसकी कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। इमरान खान एक कठपुतली है और मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, PDM इनमें से किसी का न साथ देगी
ना इनके साथ मिल के बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। बता दें कि पीडीएम के पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? कोरोना भी चल रहा है। नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ऑपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता, ऑपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा खतरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है पीडीएम का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं। तो वो हम आज इस्लामाबाद में मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल पीडीएम का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको बाहर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है। क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और नाअहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेजते, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। मीडिया और आवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकी वाली कॉल्स आपको? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीडीएम बताएं। नहीं, एक सेकंड। अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिया? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही है, आपको डायरेक्ट आ रही है, उस 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, पीडीएम ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करें? थोड़ा सा आवाम ही जानना चाह रही है कि उसमें कुछ पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियां साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, आवाम यार सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियां साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आजाद है, पाकिस्तान का मीडिया आजाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आजाद है। पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफा हुई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियां साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियां साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो